Hello students, hope you're fine, and let us continue with our series on Power Electronics 1. So till last in the last lecture we discussed about some of the switches and the configurations and what are two quadrant and one quadrant and four quadrant switches and how can we formulate them. And now we are coming to the parameters that we discussed in the last in the terms of output voltages and currents. What are those important parameters like power factor, harmonics, ripple factor, TSD, distortion factor, etc. So we saw that the harmonics are basically related to the some periodic function, okay, that we'll see today. And there is another term that is also known as the total harmonic distortion that is related to this harmonics basically. Then there is a term that is known as the power factor. We will see it later on. These three terms, the power factor, form factor and ripple factor, we will see later on. But right now we are just going to see what are the harmonics and THD and what is the distortion factor. Distortion factor is nothing but the a factor that is based on the harmonics. So sometimes the THD is also known as the distortion factor. Before coming to these parameters, let me show you something that is of importance that you must, as a power electronic engineer, you must know, and that is the devices that are available to us in this form. That means the thyristors, IGBTs, bipolar transistor, or as we know, the BJTs, MOSFETs. These all things we know. Okay, the thyristor, we know the thyristor, that is the SCR, IGBT, bipolar transistor, MOSFET. Okay, now in this graph we are trying to show that what are the devices and the applications of these devices basically. And there were two parameters of importance. What is the power rating that we are going to address. Second thing is what is the operation frequency, how much times we can switch on and off these devices in 1 second. Okay, so if we see over here this thyristor, for example, the thyristor is having this much area. That means it can be operated near 100 Hertz of frequency. That means it can be turned on and off 100 times in 1 second. But it can be used to address higher power ranges. Okay, like if you see 100 mega volt amperes. Okay. Now we have this bipolar transistor, BJTs. These are used for low power ratings, but they can be operated for larger frequency up to 10 kilohertz. And if you see over here, these thyristors are used for power devices. They are still being used for HVDC, high voltage DC transmissions. And there are several other applications where high power is required. So we opt for thyristors over there. BJTs are seldom used nowadays, but these MOSFETs and IGBTs are the most used devices nowadays. Okay, so IGBTs find their application in solar power generation, automobiles, wind power generation. MOSFETs, if you see these two curves, these two areas, see over here, IGBT is occupying this much area, and that means it can be operated at higher power than the MOSFET. But in terms of switching frequency, the MOSFET is taking lead. It can be operated at much more higher switching frequencies than the IGBT. Okay, IGBT can operate, normally we operate it up to 20 kilohertz. But MOSFETs can go beyond 100 kilohertz range. Okay, so but IGBTs can be used to address more power.
MOSFETs can be used to MOSFETs are basically used to address lower powers. Okay, so medical devices, robots, air conditioning devices, washing machines, refrigerators, these things we are using MOSFETs. Now you must have heard, now I must introduce over here that you must be knowing of inverter ACs, right? Or we can say intelligent refrigerators, intelligent ACs. What do you mean by intelligent? We mean that inside the that AC itself, we are implanting an inverter that is able to regulate the voltage, the output voltage, through a power electronic converter that utilizes MOSFET as its switch, and that regulated or the output voltage, the regulated output voltage controls the compressor of the AC. Okay, IGBTs are used for further higher power ratings, and it is extensively being used in solar power generation and wind power generation. Okay, फिर अगर हम आते हैं what are these are new technologies. ये जो SiC है और ये GaN है, this one and this one. This is SiC is nothing but silicon technology है. Sorry, sometimes happens. ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है ये वाली, दिस इज मेजरली सिलिकॉन. ठीक है, जर्मेनियम भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो सेमीकंडक्टर एलिमेंट है, बट सिलिकॉन इज यूज्ड, मोस्टली यूज्ड. और ये जो नई टेक्नोलॉजी है, दीज आर द न्यू कंपाउंड, सिलिकॉन कार्बाइड एंड गैलियम nitride. These things exhibit the same characteristics as the silicon. Okay, लेकिन these are also known as wide band gap devices. Sorry. अभी जो आपको मैं नॉलेज दे सकता हूं वो ये कि इनकी जो बैंड गैप्स होते हैं, बेसिकली वी नो दैट वी आर हैविंग वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड. ओके, एंड इन बिटवीन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये दोनों ओवरलैपिंग होते हैं बेसिकली. ओके, नो सॉरी, दे आर नॉट ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग किस केस में होता है, कंडक्टर के केस में. इन दिस सेमीकंडक्टर केस दीज आर वेरी नियर टू ईच अदर. यहां पे सिलिकॉन से थोड़ा ज्यादा इनका बैंड गैप होता है. दैट मीन्स दे आर मच वाइड, दे हैव मच वाइडर बैंड गैप्स, और उसकी वजह से दीज आर एबल टू, फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन कार्बाइड, इट इज एबल टू एड्रेस मोर वोल्टेज, in turn more power, and gallium nitride can be operated at higher frequency. ठीक है, ये जो यहाँ पे एरोज नजर आ रहे हैं, यहाँ पे जो एरोज नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स ये अभी इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एक्सपैंड कर रही है, एंड हियर वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस टेक्नोलॉजी इनटू द प्लेसेस वेयर MOSFETs आर बीइंग यूज्ड. ठीक है, और यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो एक्सपैंड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पावर एंड फ्रीक्वेंसी एज वेल, एंड इट इज पेनिट्रेटिंग into the areas where IGBT is being used extensively. ठीक है, तो ये बिल्कुल नया रिसर्च का एरियाज है कि सिलिकॉन कार्बाइड को किस तरीके से यूज किया जाए. द रीजन बिहाइंड दिस इज कि इनके जो साइज होता है दैट बिकम्स वेरी लेस, पावर लॉस बहुत कम हो जाता है. तो दैट इज व्हाई वी रिसर्चर्स आर नाउ एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट ऑन दीज ऑन द स्विचेस बेस्ड ऑन दीज डिवाइसेस. ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड IGBT होगा, गैलियम नाइट्राइड बेस्ड मॉसफेट होगा बेसिकली. ओके, नाउ कमिंग टू दी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स. परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में सबसे पहली चीज हार्मोनिक्स थी. तो हार्मोनिक्स कैन बी डिफाइंड एज अनवांटेड हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स दैट आर एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देयर मस्ट बी अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट. ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है. ऐसे समझ लीजिए कि वी आर हैविंग अ 50 हर्ट्ज सप्लाई दैट इज कमिंग टू आवर होम. ठीक है, अब इस 50 हर्ट्ज सप्लाई में अगर प्योर साइनोसॉइडल है, प्योर साइनोसॉइडल मतलब इट विल बी लाइक दिस, वेवफॉर्म विल बी प्योर साइनोसॉइडल. लेकिन इसके अंदर अगर we are having higher frequency components as well, उनका sum भी होगा. This is not like this, but it is a sum of this fundamental plus higher frequency components. Then these higher frequency components will be known as the harmonics. तो अक्सर यही होता है कि exact sinusoidal supply नहीं होती, इसके अंदर थोड़े बहुत harmonics भी होते हैं. तो we need to understand what are basically the harmonics. So by definition we can say that somehow, what are the reasons? That we will discuss later on, but somehow we are having a voltage or current, ऐसा है हमारे पास voltage and current that is not purely sinusoidal. ठीक है, तो that means it is a sum of different sinusoids. ठीक है, तो फोरियर ने इसको एक्सप्लेन किया था. फोरियर ने कहा था कि any non sinusoidal quantity can be expanded into a sum of sinusoidal components. Here in our case we are having periodic waveforms. ठीक है, ये याद रखें. तो यहां पे अगर हम देखें, हमने ये मैटलैब में फंक्शन बनाया है. ठीक है, और मैटलैब में फंक्शन कैसे बनाया है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस पार्ट. आई एम ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू द स्क्रीन फॉर मैटलैब. ठीक है, तो लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, अभी आपके पास ये सामने क्लियर स्क्रीन है. तो मैं सबसे पहले जो है टाइम को डिफाइन कर रहा हूं. ठीक है, मैंने 0.1 सेकंड का टाइम लिया है, जिसको मैंने 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, अब ओमेगा टी क्या होगा, अगर 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, एवरीबॉडी नोज दैट मुझे ये लिखना पड़ेगा, ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू द टाइम. तो मुझे दिस विल टर्न the time into angular frequency, that is in what, that is in angle, that becomes this big omega t becomes an angle now. ठीक है, अब मैं अगर मैं ऐसे डिवाइन करूं a is equal to sin omega t, अब इसका एम्पलीट्यूड मैंने 1 लिया है. ठीक है, सेकेंड, if we are having another function b as 0.3 times sin twice of omega t. ठीक है, when you see, मैं जल्दी से कर देता हूं. ठीक है, अब फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, 1 मिनट. नाउ सी ओवर हियर, मैंने 4 चीजें डिफाइन करी. पहला, विद अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ओमेगा टी मैंने डिफाइन कर चुका हूं, तो मैं यहाँ पे ओमेगा टी डायरेक्टली ले रहा हूं. फिर मैं b एक और फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं जो कि 0.3 टाइम्स है जिसका मैग्नीट्यूड, और इट इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फंडामेंटल. ठीक है, c जो है वो 3 थ्राइस है उसकी फ्रीक्वेंसी, d जो है वो इट इज 5 टाइम्स. ओके, और जो फाइनल फंक्शन है इट इज अ सम ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, अगर मैं इसको प्लॉट करूं, ठीक है, प्लॉट करता है. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, f एक जो फंक्शन है इसको मैं t के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहा हूं. इफ आई जस्ट प्लॉट इट यू विल सी अ फंक्शन लाइक दिस. अगर मैं आपको ये पहले से ये फंक्शन दिखाता, ठीक है, तो क्या आपको पता चलता कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? नहीं पता चल सकता था. ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड दैट इफ वी सी अ वेव फॉर्म डायरेक्टली वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हार्मोनिक इज देयर इन इट. ठीक है, तो टाइम डोमेन में
तो you will appreciate this that in time domain we are not able to understand what frequency component is present. ठीक है, तो कमिंग बैक टू माई स्लाइड ओवर हियर, तो मैं ये फंक्शन एक फंक्शन है टाइम के टर्म्स में, और यहाँ पे टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो विद टाइम जो भी प्लॉट किया हमने फंक्शन वो डेवलप किया, राइट. बाय लुकिंग इनटू दिस फंक्शन राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू डिस्क्राइब इट. वो तो अभी क्योंकि मैंने आपके सामने प्लॉट किया तो आप कह सकते हैं कि सेकेंड हार्मोनिक भी है, सेकेंड यानी 50 हर्ट्ज तो फंडामेंटल हो गया, सेकेंड हार्मोनिक विल बी ट्वाइस ऑफ इट, दैट मीन्स 100 हर्ट्ज. तो 100 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, 500, तो इस तरीके से ये कंपोनेंट इसके अंदर है. तो मैं अगर यहाँ पे देखूं तो मैंने ये जो सिग्नल बनाया था इट वाज हैविंग ए, बी, सी और डी पार्ट. ठीक है, और अगर मैं इसको खोलूं आई कैन जस्ट फर्दर इलैबोरेट लाइक दिस कि मेरे पास जो फंडामेंटल था ओवर हियर, दिस वन ए वाला, दैट वाज गिवन बाय 1 sin 2 pi 50 into t. दूसरा वाला 0.3 टाइम्स था, तीसरा वाला और उसकी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस थी. ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी थ्राइस थी, तो ये ट्वाइस फ्रीक्वेंसी वाला ये है, थ्राइस फ्रीक्वेंसी वाला ये पर्पल वाला है, एंड 5 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी इज दिस. अच्छा, एक और चीज यहां पे गौर करिएगा कि हर हायर फ्रीक्वेंसी पे जब मैं जा रहा हूं तो एम्पलीट्यूड कम भी करता जा रहा हूं. ठीक है, इसका रीजन है. ठीक है, ऐसे ही नहीं है, ऐसा भी तो कर सकता था मैं कि इसकी एम्पलीट्यूड को इससे ज्यादा रख देता, ये दूसरों से ज्यादा रख देता. नहीं, मैंने जानबूझ के इसको नहीं किया, क्योंकि नॉर्मली जो हार्मोनिक्स होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं कि फंडामेंटल के बाद जितने भी हार्मोनिक्स आ रहे होते हैं उनका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता रहता है. ठीक है, नॉर्मली. लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ हार्मोनिक्स का ज्यादा भी होता है. नाउ कमिंग टू, अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको प्लॉट कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ओनली, कि पहला हार्मोनिक या 50 हर्ट्ज वाला जो हार्मोनिक है उसका एम्पलीट्यूड क्या था. ठीक है, और उसको या तो 1 से डिनोट कर दें या 100 से, और उसके परसेंटेज में दूसरा हार्मोनिक कितना उसका एम्पलीट्यूड है, तीसरा हार्मोनिक जो है उसका कितना एम्पलीट्यूड है. ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस फंडामेंटल एम्पलीट्यूड वी आर डिफाइनिंग डिफरेंट हार्मोनिक्स. और इस एक्सिस पे मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, जो फ्रीक्वेंसी. ठीक है, आई एम डिफाइनिंग इन दिस डायरेक्शन द फ्रीक्वेंसी और द हार्मोनिक ऑर्डर. ठीक है, फ्रीक्वेंसी को तो हर्ट्ज में कहते हैं, जो कि ये डिफाइन कर रहे हैं यहां पे, और दिस इज द हार्मोनिक ऑर्डर. ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक इज ऑफ 100 हर्ट्ज, थर्ड हार्मोनिक दैट्स वाला 50 into 3 150, fourth harmonic 50 into 4 200, fifth harmonic is 5 into 50 that is 250 hertz. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास नॉर्मली इससे ज्यादा हायर हार्मोनिक्स होते चले जाते हैं. ठीक है, नाउ जब आप किसी चीज का हार्मोनिक निकालेंगे, हार्मोनिक प्रोफाइल निकालेंगे किसी भी फंक्शन का, तो इसी टाइप का हमें वो निकाल के देगा. ठीक है, ईदर वी विल बी हैविंग द मैक्सिमम ऑफ ओवर हियर एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फंडामेंटल, या फिर उसको 100% करके दिखाएगा वो, और उसके टर्म्स में कितनी परसेंटेज की हार्मोनिक की वैल्यूज हैं. ठीक है, अब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन मैं आपके सामने करता हूं. ठीक है, लाइक दिस, मेरे पास एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओवर हियर. ठीक है, दैट इज मूविंग लाइक दिस. विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वैल्यू ऐसे चेंज होती रहती है. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फोरियर आई कैन बाइफरकेट और ट्राइफरकेट और I can make many furcations, many parts in terms of its frequency, sinusoidals. ठीक है, तो पहला जो फंडामेंटल होगा that will be of 50 हर्ट्ज. अच्छा, ये जो डिस्टॉर्टेड सप्लाई है, आप ये समझिए कि हमारे पास ऐसा है जैसे हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई हमारे पास अपने सॉकेट में आ रही है, और उसको मैं एक ऑसिलोस्कोप पे या किसी डिवाइस पे मैं देख रहा हूं. ठीक है, अब उसकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, जो मेन क्वांटिटी होगी, दैट विल बी ऑफ कोर्स ऑफ 50 हर्ट्ज एंड इट शुड बी प्योरली साइनोसॉइडल. ठीक है, प्लस जो थर्ड हार्मोनिक है या सेकंड हार्मोनिक है, मैंने यहाँ थर्ड दिखा दिया है, तो सेकंड भी हो सकता है, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट, फिफ्थ कंपोनेंट. ठीक है,
और उसका मैं अगर एम्पलीट्यूड खाली लूं, ठीक है, जैसे यहां पे मैंने दिखाया आपको, तो आप अप्रिशिएट करेंगे इसको कि मैं सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड दिखा के अपना काम चला सकता हूं। मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मेरे पास फंडामेंटल के टर्म्स में बाकी कितने हार्मोनिक्स की क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। सो बेसिकली आप ये देखिए, ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज बेसिकली रिटन इन टाइम डोमेन और शोन इन टाइम डोमेन, और एम्पलीट्यूड के टर्म्स में अगर मैं इस एक्सिस पे देखूं, आई एम जस्ट डिनोटिंग दिस सिग्नल और दिस वोल्टेज और दिस करंट, ओके, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हियर इस वाले जो ये जो फंक्शन होगा, ये वाला जो फंक्शन होगा, दिस विल बी एफ ऑफ टी, राइट। और ये जो ग्राफ होगा यहां पे जो आ रहा है, यहां पे जो एफ होगा, ठीक है, दैट शुड बी ओमेगा टी, ठीक है। और यहां पे हमारे पास ओमेगा टी इधर जा रहा होगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी sorry, it should not be t over here, it should be omega और फ्रीक्वेंसी। यहां पे भी t नहीं होगा, यहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओमेगा होगा। Now how can we visualize these harmonics? What equipments are basically used to visualize these harmonics? First one, which is an expensive one, that is known as the power analyzer, basically, ठीक है, power quality analyzer. This equipment can be used, this is in our laboratory over here, and by this we can measure the frequency, the harmonics, the voltage amplitude, the RMS values of the currents and voltages in three-phase system, for a three-phase supply or for a single phase, ठीक है। और ये स्क्रीन हमारे पास या तो बार्स में हमें वैल्यूज दे देगी, या फिर एम्पलीट्यूड में हमें वैल्यू दे देगी। ये फ्लूक का हमारे पास है जो यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो फ्लूक, एंड दिस प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली 9 लाख रुपीज, ठीक है। नाउ दी वैल्यूज दैट आर अवेलेबल इन दिस स्क्रीन आर इन मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, यानी वोल्ट्स में ही दिखाएगा या एम्पियर्स में दिखाएगा। फर्स्ट यानी फंडामेंटल की क्या वैल्यू है इन वोल्ट्स या एम्पियर्स, या सेकेंड हार्मोनिक की या थर्ड हार्मोनिक की क्या वैल्यू है। अच्छा, एक चीज और यहां पे मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि अगर हमारे पास इस वेव फॉर्म के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स भी हैं जिनकी वैल्यू फंडामेंटल से कम है, ठीक है, दैट मींस वी आर हैविंग सम पार्ट्स ओवर हियर आल्सो, ठीक है। तो दीज वैल्यूज आर बेसिकली नोन एज सब हार्मोनिक्स, बिग ठीक है। Now second way of developing or getting the values of the harmonics in the actual supplies or actual waveforms is using an oscilloscope. Oscilloscope में अब जो नए oscilloscopes आते हैं उनके अंदर ये फीचर होता है, we can determine the harmonics or the magnitudes of the harmonics, ठीक है। कुछ oscilloscopes ऐसे होते हैं कि जो मैग्नीट्यूड में ही दे देते हैं, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, लेकिन most of the oscilloscopes basically they give the values in terms of decibels, ठीक है। अब उस डेसिबल वोल्टेज को हमें एक्चुअल वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो डेसिबल में यानी लॉगरिथमिक स्केल पे अगर हम देखें तो दीज वैल्यूज आपको लगेगा कि कुछ वैल्यू है यहां पे, राइट, लेकिन इफ यू सी ओवर हियर इट इज बिलो जीरो, यहां पे ये जीरो यहां पे है, जीरो यहां पे, इससे माइनस में ये वैल्यूज है, ये वाली वैल्यू माइनस में, ये वाली वैल्यू माइनस में,
सो अगर मैं इन लॉग वैल्यूज को एक्चुअल वैल्यूज में कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बी वेरी स्मॉल वैल्यूज, ठीक है। So we have a DL1640 oscilloscope in our laboratory over here, which is whose cost is approximately 2 lakh rupees. और उसके ही जरिए से मैंने ये वोल्टेज और ये करंट प्रोफाइल निकाली है कि फर्स्ट उसका फंडामेंटल कितना है, थर्ड कितना है, फिफ्थ कितना है, लाइक दिस कैन बी डन बाय नोइंग द फॉर्मूला बेसिकली, ठीक है। फॉर्मूला के जरिए से आप इसको कर सकते हैं। नाउ हियर आई एम नॉट गिविंग द फॉर्मूला, और इससे आसान तरीका ये है कि देयर इज यू जस्ट राइट ऑन गूगल हाउ टू कन्वर्ट द dBV or decibel voltage into actual voltage, and it will take you to certain site where you can convert then these values easily, ठीक है। Now if you look into a waveform, ठीक है, then you must be able to understand how much harmonic is there. Are there large harmonics or harmonics that are having higher frequency or lower frequency, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देखो, दिस इज मैंने हाथ से बनाया है तो ये प्योर साइनोसॉइडल है, ठीक है। अब इसको देखो, दिस वेवफॉर्म मैं देख के ये कह सकता हूं कि इसके अंदर जो हार्मोनिक ऐड हुआ है दैट इज ऑफ लो वैल्यू, यानी व्हाट डू आई मीन बाय लो वैल्यू, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, यानी 50 के आसपास है, 50, 100 या 150 लाइक दैट, ठीक है। बेसिकली यहां पे थर्ड हार्मोनिक ऐड हुआ है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखें तो देयर आर हार्मोनिक्स दैट आर वेरी नियर टू ईच अदर, या फिर हम ये कह सकते हैं दैट इज ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे देखूं, मैंने इसमें मैटलैब में बनाया है इसको, तो मैटलैब के अंदर मैंने 20th हार्मोनिक, व्हाट डू आई मीन बाय 20th हार्मोनिक, आई मीन बाय 20th हार्मोनिक 50 into 20, that means what, 1000 hertz। तो मैंने 0.01 sin 2 into pi into what is the frequency, 1000 t। मैंने किस में ऐड किया है, आई हैव एडेड टू 1 इसमें ऐड किया, यानी ये फंडामेंटल जो क्वांटिटी थी जो 50 हर्ट्ज की थी उसके अंदर मैंने 1000 हर्ट्ज का ये 20th हार्मोनिक को मैंने ऐड किया, ठीक है। तो देखिए आपकी जो वेव फॉर्म है, दिस वेव फॉर्म इज बेसिकली नियर टू साइनोसॉइडल, राइट, बट हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, ठीक है। तो वेवफॉर्म को देख के हमें अंदाजा होना चाहिए कि उसके अंदर हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है या लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। इस केस में लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, इस केस में हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, ठीक है। नाउ दिस इज दीज एब्सोल्यूट दिस वेवफॉर्म इज बेसिकली स्क्वायर वेवफॉर्म, जिसके अंदर हर टाइप का हार्मोनिक होगा, ठीक है, हर टाइप का ऑड हार्मोनिक होगा, ठीक है, नॉट द इवन हार्मोनिक। उसका रीजन कुछ और है, दैट वी विल सी लेटर ऑन अगर टाइम मिलेगा तो। नाउ हाउ डू वी रिमूव दिस हार्मोनिक्स। अब ये देखिए यहां पे अगर मैं देखूं इस चीज को, वी आर हैविंग द फ्रीक्वेंसी इन दिस डायरेक्शन एंड एम्पलीट्यूड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये फंडामेंटल था और ये हमारे पास लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है। दो टाइप की हमारे पास सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट सिचुएशन कैन बी कि वी आर हैविंग लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स, ठीक है। बाय नाउ आई एम assuming that you have understood the thing, the word lower order harmonics and higher order harmonics। तो यहां पे अब ये वेवफॉर्म, ये अगर हम स्पेक्ट्रम देखें तो हमारे पास फंडामेंटल है और हायर ऑर्डर हार्मोनिक, यानी 2 किलोहर्ट्ज, 4 किलोहर्ट्ज ऐसे हार्मोनिक्स हैं, ठीक है।
और यहां पे हमारे पास ऐसा हमने सिग्नल को ओपन किया है कि उसका जो हार्मोनिक्स है दैट आर नियर टू द फंडामेंटल, ठीक है। तो इनको खत्म करने के लिए यू विल बी स्टडिंग दिस इन सर्किट थ्योरी द फिल्टर्स, ठीक है। यू विल बी स्टडिंग इन व्हाट आर different types of filters. Now we have low pass filter, high pass filter or band pass filters. Here we are going to use low pass filter, by which I mean कि हमें ऐसा फिल्टर डिजाइन करना होगा कि हमें वो लोअर फ्रीक्वेंसी को तो को अलाउ करे और जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं उनको खत्म कर दे, ठीक है। Now what will happen कि अगर मेरे पास लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स हैं तो मुझे ये लोअर साइड के हार्मोनिक्स को एड्रेस करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, आई विल हैव टू डिलीट ऑल दीज हार्मोनिक्स। और उस केस में जब आप सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें अंदाजा होगा कि उसमें हमें लार्जर कंपोनेंट्स चाहिए। फिल्टर डिजाइन जो होता है दैट कंटेन्स द करेक्ट वैल्यूज ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमें लार्जर इंडक्टेंसेस और कैपेसिटेंसेस चाहिए होंगे इस केस में, ठीक है। और अगर हमें हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो हमें फिल्टर ऐसा चाहिए होगा जिसके अंदर हमारे पास इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की लोअर साइजेस होंगे। तो वी नीड, तो इसलिए क्या चीज ज्यादा डिजायरेबल है, दैट वी आर हैविंग हार्मोनिक्स ऑफ हायर वैल्यूज, क्योंकि हायर वैल्यूज ऑफ हार्मोनिक्स अगर होंगे देन वी विल हैव अ फिल्टर दैट इज ऑफ स्मॉलर साइज। अगर लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स होंगे तो उनको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ऐसा फिल्टर चाहिए होगा जो कि हमारे पास ऐसा फिल्टर चाहिए होगा जो जिसके कंपोनेंट्स लार्जर साइज के होंगे। नाउ अगर हमारे पास सब हार्मोनिक्स है तो, क्योंकि सब हार्मोनिक्स वो जो है खुला छोड़ दूं जी, छोड़ दी खुला छोड़ दिए। जो सब हार्मोनिक्स है हमारे पास वो उनको एलिमिनेट कैसे करेंगे, अगर उनको एलिमिनेट करेंगे तो फंडामेंटल भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सो सब हार्मोनिक्स आर लीस्ट डिजायर्ड, वो चाहा जाता है कि वो हो ही ना, ठीक है। तो हम रिमूव क्यों करना चाह रहे हैं इनको, द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई डू वी नीड टू रिमूव देम। ऑफ कोर्स हमारे पास जो वोल्टेज या करंट है अगर वो प्योर साइनोसॉइडल होगा, ठीक है, या सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, that will lead to the operation of the machine that we want to operate through that supply. जो हार्मोनिक्स होंगे, दूसरे जो हार्मोनिक्स होंगे, that will lead to the heating of the power device and the machine as well, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं heating of the power device and machines कह लीजिए, लोड्स कह लीजिए, ठीक है। तो these harmonics will not contribute in these harmonics will not contribute in what, in active thing, यानी मशीन के मोशन के लिए नहीं, बल्कि वो हीट प्रोड्यूस करेंगे एंड समटाइम्स दे विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द डिसेलरेशन ऑफ द मशीन। खैर दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, बट हमें हल्का ये आइडिया होना चाहिए कि इट विल लीड टू द हीटिंग ऑफ द पावर डिवाइसेज एंड द मशीन्स। एंड जब ज्यादा हीटिंग होगी तो क्या होगा कि दैट डिवाइसेस, दोज डिवाइसेस विल डीके बिफोर देयर एज, ओके। नाउ सोर्सेस क्या हो सकते हैं वोल्टेज और करंट हार्मोनिक्स के, वो आपको अपना एक असाइनमेंट बनाना है इस पे, ठीक है। You can get many sources from YouTube, from the Wikipedia and other sources. आप एक पूरी लिस्ट बनाइए कि हमारे पास वोल्टेज हार्मोनिक्स कैसे आते हैं और करंट हार्मोनिक्स कैसे आते हैं, ठीक है। अब अगर हम मैथमेटिकली देखें इस चीज को, तो एक पीरियोडिक फंक्शन जो है, ठीक है, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू डीसी पार्ट and even harmonics and odd harmonics, ठीक है। I think I will take this part in the next video.